Pramod Bhoj. Today we are going for our next chapter, that is our next topic, that is your Science 2 first lesson about the hereditary and evolution. In this chapter we are study about the what is hereditary के प्रोसेस कैसे है, there is a DNA, RNA, evolution के प्रोसेस किस तरह से, प्लस डार्विन थ्योरी, लामार्किज्म एंड द इवोल्यूशन थियरीज, and last point is about your human evolution. All these points we are discussed in this video. Your answer keywords है ये जो आपके आंसर्स में होनी चाहिए. तो इस लेसन को जो बहुत लेंदी लेसन है उसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है. अब इस लेसन को हम लोग स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट देयर इज वन रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड बेल आइकन. Let's start our lesson. Let's start our lesson. Hereditary and evolution. Your Science 2 chapter is the first chapter. First question, what is the hereditary? अब hereditary क्या होगा? A transfer of biological character from one generation to the next one with the help of genes called the hereditary. तो hereditary क्या है? There is a biological character. जो भी biological characters है उसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करना with the help of the genes, that's called the hereditary. Next, in this chapter we will study about the some scientists which are a work for the hereditary. First is a 1886. There is a John Mendel, is a pioneer of the modern genetics. Discovery about the plant. There is a pea plant लिया जो एक का जो seeds था वो green था, एक का yellow था. And there is a discovery of how to evolve or changes into these seeds. ये उन्होंने यहाँ पे बताया. अब this theory we already read and learn in last class. That is the 9th class में हम लोग ने इसके बारे में डिटेल हो चुका है. Next is a varus is a mutational theory. That is, mutation कब होता है? There is a sudden changes in characters. What is a mutation? There is a sudden changes in character. Next, 1902, the Walter and Sultan. That is a Sultan. Pair of chromosomes. They study about the pair of chromosomes. That is a pair of chromosomes in a grasshopper cell. They study about the pair of chromosomes into the grasshopper cells. Next, 1944, that is a Oswald Avery, McKinley, McCurdy and Colin McLeod. They study about the DNA. That is, they conclude that except virus, all living organisms have a DNA as a genetic material. हर एक living organism में DNA होता है except virus. Next, there is a 1961. There is a Francisco Jacob and Jack Menor. There is a protein synthesis. अब DNA और RNA या DNA में क्या चीज होती है? There is a proteins. There is a protein synthesizing the model of process of protein. They discover the model of process of protein.
synthesized with the help of the DNA and bacterial cell. अब हेरिडिटरी का यूजेस क्या है? दैट इज अ बेनिफिट ऑफ द साइंस ऑफ हेरिडिटरी. नेक्स्ट, there is a first point. A science of hereditary is used for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorder. डायग्नोस करना, किसी भी बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शंस या डिजीज के बारे में डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट फाइंड करना, प्लस द प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर. जो भी हेरिडेट्रिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बाद बारे में यहाँ पे प्रिवेंशंस फाउंड करना. सेकेंड पॉइंट इज अ प्रोडक्शन ऑफ हेरिडेटरी वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. हाइब्रिड्स होते हैं, कुछ ऐसे हाइब्रिड्स होते हैं जो सेम क्लाइमेट एंड डिजीज को रेजिस्ट कर पाते हैं. दैट इज अ एनिमल एंड प्लांट, और उसके ऊपर हम लोग स्टडी करते रहते हैं. नेक्स्ट, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज. इंडस्ट्रियल प्रोसेस, माइक्रोब्स, दैट इज अ ईस्ट है, आपका बेकिंग सोडा है, अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रोब्स है, इवन मेडिसिन के लिए भी माइक्रोब्स है. तो ये सारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग अल्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइंस ऑफ हेरिडेटरी. तो उसको हम लोग करके हमारे लिए उसको यूज कर सकते हैं. दैट इज द क्वेश्चन. क्या आ सकता है यहाँ पे? व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ साइंस ऑफ हेरिडेटरी? एंड हियर इज अ 2 मार्क क्वेश्चंस. ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस होगा. एंड दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर फॉर द दैट आंसर. ये आंसर से. ओके, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अ ट्रांसक्रिप्शन. दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन. अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ये शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है. यहाँ पे आरएनए पॉलीमर्स, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स काम करेंगे. ओके, हियर इज अ पिक्चर एंड लेबल डायग्राम, also giving you a label diagram. Now here is a points. अगर ट्रांसक्रिप्शन ये शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाए तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें मेंशन होने चाहिए? फर्स्ट, synthesize the mRNA as per the nucleotide sequence present on the DNA molecule, called the process of transcription. Synthesize करना किसको? mRNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज अ आरएनए, एंड डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. तो ये दोनों डिफरेंट है. आरएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट in the DNA molecules and called the process of transcription. Second point, nucleotide sequence present in the molecule, DNA molecule called the genes. What is the genes? यहाँ पे उसका आंसर है. Third point, synthesis of the protein by the DNA through the RNA called the central dogma. What is a central dogma? That is a synthesis of the protein by the DNA through the RNA called the central dogma. Next, fourth point is a mRNA form in the nucleus, come in cytoplasm and it bring into a code message to the DNA. mRNA क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में आएगा और डीएनए को एक कोड मैसेज दे देगा. दिस मैसेज कंटेन कोड ऑफ अमीनो एसिड. ये मैसेज किस में होगा? अमीनो एसिड. दिस मैसेज कंटेन इनटू अ अमीनो एसिड.
नेक्स्ट, द कोड ऑफ ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो कोड है एमिनो एसिड का कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज कॉल्ड द ट्रिपलेट कोडन। इट्स कॉल्ड द ट्रिपलेट कोडन। इजी। चलो, ये 6 पॉइंट आपको ट्रांसक्रिप्शन के 2 मार्क या 3 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन होगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ये पॉइंट ऐड कर दो, यू विल गेट अ फुल मार्क। चलो, नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना मेड द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अबाउट ट्रिपलेट कोडन, दैट इज he found the 20 amino acids which are into a triplet codon. इन्होंने 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को फाउंड किया और इस वजह से उन्हें नोबेल पारितोषिक मिला था, दैट इज 1968 में। अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट मेथड इज अ ट्रांसलेशन। स्क्रिप्ट लिख के हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। अब ट्रांसलेट करना है, किसको बताना है? हेरिडिटरी को बताना पड़ेगा ना कि ये क्या क्या होना है। हियर इज अभी यू सॉ द पिक्चर, हियर इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा? mRNA एंड हियर इज अ एमिनो एसिड। ओके, एंड सी द पिक्चर ऑफ द tRNA। ये tRNA होगा और उसके साथ में होगा राइबोसम्स। ये क्या है? राइबोसम्स। चलो, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। mRNA इज मेड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कॉडन। ये ट्रिपलेट कॉडन बहुत सारे होंगे। mRNA मैसेज होगा ना ये, तो इसमें बहुत सारे ट्रिपलेट कॉडन होंगे। एज पर द मैसेज of mRNA, acid supply to the tRNA, amino acid supply to the tRNA। ये किसको भेज देगा? tRNA को भेज देगा। tRNA molecules with complementary anticodon is brought near to mRNA and this process called the translation. What is the translation? That is a tRNA molecule with the complementary anticodon is brought near the mRNA. This process called the translation. That is process called the translation. Answer, what is a translation method? So here is answer, is a 2 mark question. आंसर। चलो, नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन। कहाँ पे उसको फिट करना है, लोकेशन हम लोग देखेंगे। चलो, एमिनो एसिड ब्रॉट बाय द tRNA आर बाउंड टुगेदर बाय द पेप्टिड्स बॉन्ड्स। ये एमिनो एसिड के जो tRNA है वो पेप्टिड बॉन्ड से बाउंड है विद द हेल्प ऑफ द rRNA। ओके, that is ribosomes. Chalo, during in this process ribosome keep on moving from one end of mRNA to other end of the triplet codon, mRNA to the triplet codon के तीनों एडन पे ये कहाँ घूमते रहेंगे, that is a ribosomes। और इसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन। इसे ही हम लोग कहेंगे ट्रांसलोकेशन। इजी है, ये 3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में इसका एक्सप्लेनेशन अप्रोक्सीमेट 1.5 पेज का है। ओके, आई फाउंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच गिव यू अ फुल मार्क्स। ये पूरे मार्क्स आपको देने के लिए मेहनत की गई है। चलो, नेक्स्ट इज अ म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या है? जैसे आजकल बहुत ये न्यू वर्ड्स आ रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, फेज है,
अब कोरोना वायरस न्यू न्यू म्यूटेशंस कर रहे हैं। अब ये म्यूटेशंस क्यों हो रहे हैं? वायरस के म्यूटेशंस कब होंगे? वायरस इज अ mRNA, ये मैसेंजर है, इसके पास कोई भी सेल्स नहीं है। ये एक्टिवेट कब होगा? जब किसी सेल्स में आएगा, मीन्स किसी न्यूक्लियोटाइड से साथ कनेक्ट होगा, तभी वो उसकी रिप्लिकास बनाएगा, दैट इज अ डुप्लीकेट्स। रिप्लिका क्या होती है? डुप्लीकेट्स बनाएगा। तो ये म्यूटेशन करेगा विद डिफरेंट सेल्स। हर एक बॉडी में जीन्स होते हैं, हर एक के जीन्स डिफरेंट डिफरेंट है, और इस वजह से इससे बनने वाली रिप्लिकास है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। चलो म्यूटेशन देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू द जीन्स। वी ऑलरेडी डिस्कस, जीन्स क्रिएट होंगे, हर एक जीन्स डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, समटाइम सडन चेंजेस अकर दोज जीन्स। कुछ टाइम पे जीन्स में भी कुछ चेंजेस होते रहते हैं। दैट इज एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन्स change its position that cause a minor change, it is a mutation। कोई न्यूक्लियोटाइड जीन्स अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज कर देता है, और ये क्या होगा? इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। दिस प्रोसेस, म्यूटेशन इज अ एवरलास्टिंग प्रोसेस, इट इज अ एवरलास्टिंग प्रोसेस है। एंड सम म्यूटेशंस मे बी माइनर and but some are the considerable। कुछ mutations ये बहुत छोटे होते हैं तो डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, बट कुछ mutations considerable होते हैं, बॉडी में उस तरह से चेंज आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन कैसे हुआ? अब तक हम लोग ने क्या देखा कि जीन्स में या क्रोमोसोम्स जो है या न्यूक्लियस है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है फॉर द चेंजेस, दैट इज अ हेरिडिट्रिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ जेनेटिकल फैक्टर। ओके, ये हमारा जेनेटिकल फैक्टर हुआ। अब इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इज अ एक्सटर्नल फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट ऑन द जेनेटिकल फैक्टर। लाइक बहुत सारी धूप है, गर्मी है, तो जो जेनेटिकल चेंजेस होगी इवोल्यूशन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इवोल्यूशन होगा। दिस इज अ नेचुरल, ये नेचुरली होते जा रहा है। जैसे आप देखोगे कि बर्फीले प्रदेश में या टुंड्रा वगैरह रीजन में रहने वाले लोग कुछ डिफरेंट होते हैं, और ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले लोग डिफरेंट है। इवन इन केस ऑफ आवर ईस्टर्न साइड लाइक चाइना, इंडिया, ये एशियन लोग की हाइट, बॉडी डिफरेंट है देन द यूरोपियन लोग्स। ये जो यूरोपियंस है उनकी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशंस। तो ये सारे इवोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट करेंगे। चलो, अब इवोल्यूशन ये 4 मार्क के लिए, शॉर्ट नोट के लिए पूछा जा सकता है। मोस्टली दे आर आस्किंग फॉर 2 मार्क्स, बट इट कैन बी दे विल आस्क फॉर 4 मार्क। ये चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क का। बोर्ड से जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको, इसमें अप्रोक्सीमेट 6 मार्क तक इसको वेटेज दिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम, क्वेश्चन आंसर्स, गिव रीजन इसमें। चलो, हियर इवोल्यूशन, formation of new species due to change in the specific characters of several generation। क्या हुआ यहाँ पे? न्यू स्पीशीज ड्यू टू
चेंज इन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, चेंज हो रहा है न्यू स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ. Several generations of living organism as a response of natural selection. It's called the evolution. ये एक evolution होगा, धीरे धीरे ये change होगा. Okay, next, living organism have been developed according to following phases. These are the very important. You must mention these phases in your answer. That is, organism have been developed according to following phases. First phase क्या थी? As per the evolution, simple elements are formed. जो आप लोग evolution theory में भी देखने वाले हो. Whereas ocean में एक सिंपल एलिमेंट फॉर्म हो गया. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप था, देयर इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये एलिमेंट्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होना चालू हो गए. चेंजेस कंटिन्यू होते हैं, हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते रहते हैं, तो यहां पे भी सेल्स में ये कंटिन्यू चेंजेस होने लगे. नेक्स्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होने चालू हो गए एंड न्यूक्लिक एसिड भी उसके साथ फॉर्म होना स्टार्ट हो गया. देन मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर मिक्सिंग विथ ईच अदर एंड इन द नेक्स्ट स्टेप दे फॉर्म अ प्रिमिटिव टाइप सेल. उन्होंने क्या फॉर्म किया? एक प्रिमिटिव टाइप सेल फॉर्म किया. नेक्स्ट, दे स्टार्ट अ ग्रोथ ऑफ सेल इन नंबर्स. सेल क्या हो गए? नंबर्स में रिप्लिका बनने लगे, डुप्लीकेट होने लगे. ओके, तो यहां पे हमें टू टाइप्स मिले, दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप सेल्स एंड नंबर्स बनने लगे. और इसका ही हमें रिजल्ट क्या मिला? हियर इज अ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म. क्या मिला हमें? फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फॉर्म हो गया, दैट इज अ योर सेल. सेल्स इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स है. क्या है सेल्स में? न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म है, ओवक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स है और ये फॉर्म हो गए. एंड हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. और इसी के बाद इसी इवोल्यूशन को आगे बढ़ते बढ़ते यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए. लाइक बैक्टीरिया इज अ यूनिसेल्युलर एंड वी आर अ मल्टीसेल्युलर. तो ये फॉर्म हो गए एंड दिस इज अ बेसिक स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन. दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द इवोल्यूशन. क्लियर? चलो नेक्स्ट theory of evolution. चलो, according to this theory, first living material, that is a protoplasm, has been formed in an ocean. First point. Second point, in due course of time form unicellular organism and then change in a complex organism structure. They are changed into a complex, means we already discussed, that is a first is a unicellular, एक सेल क्रिएट हुआ
और उसको ही ग्रुपिंग करके क्रिएट हो गया एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, दैट इज अ मल्टी सेल्यूलर, भी इसी वजह से क्रिएट हुए. नेक्स्ट, change and development in organism had been all round. This leads to evolution of organism. Change and development, ये क्या हो रहा है? Here is a change and development into organism. There is a all round, पूरा total development start हो गया. And here is a evolution start into a organism. मल्टीसेल्यूलर बन चुके हैं, बट वी आर चेंजिंग, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है हमारे बॉडी में, एंड दिस इज द इवोल्यूशन. फोर्थ पॉइंट इज अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनिमल from the ancestor having different structural and functional organization called the evolution. According to the theory of evolution, they are defined the evolution as a progressive development, progress होते जा रहा है, development of the plant and animal from the ancestor, जो उनके पूर्वज है, have been different structural and functional organism. यहाँ पे जो ancestor थे उनसे भी कुछ इवॉल्व होते जा रहा है, चेंजेस हो रहे स्ट्रक्चर में भी एंड देयर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, एंड दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन. दिस इज कॉल्ड अ इवोल्यूशन. नेक्स्ट, चलो इजी कर दिया मैंने. चलो, these points are the very much importance. Just read these points, you can crack this lesson easily. Next, evidence of evolution. अब ये evolution हो रहा है, उसका evidence क्या है? तो these point, ये evidence of evolution ये divide हो रहा है किसमें? फर्स्ट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. मॉर्फोलॉजिकल विच आर अ विजिबल, हम लोग उसको इजीली देख सकते हैं, दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. क्या है? सिमिलरली, सिमिलैरिटीज इन द एक्सटर्नल एंड विजिबल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. फर्स्ट इसमें लाइन में आपके पास उसका डेफिनेशन आ गया, दैट इज व्हाट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस? दैट इज अ सिमिलैरिटी इन एक्सटर्नल एंड द विजिबल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. क्लियर? नेक्स्ट, एनिमल स्ट्रक्चर लाइक माउथ, ईयर पिना, हेयर पोजिशन ऑफ आईज, ये एनिमल्स में हुआ. एंड इनटू द प्लांट देयर इज अ लीफ शेप, लीफ वेनेशंस. लीफ वेनेशंस ये भी डिफरेंट होता है. तो ये क्या हो गए? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हो गए इनटू द एनिमल एंड द प्लांट. थर्ड पॉइंट, सिमिलर फीचर्स shows that origin of different animal and plant group must be a common ancestor. Sweep हो गया. That is, a similar feature shows that origin of different animals है और plants है, but they are having a common ancestor. Below here is a example: dog, sheep, wolf. सीधा फेस देखो, मुंह का साइज देखो, सेम है. तो यहां पे चेंजेस कहां पे है? देयर इज अ लोकेशन ऑफ आईज.
डॉग की आईज फ्रंट साइड में, शिप की साइड, शिप की आईज बोथ द साइड है। ये चेंजेस है, ईयर पिना चेंजेस है, बट मूव का जो साइज है वो सेम है। नेक्स्ट इज अ प्लांट। प्लांट में हमें क्या देखना है, लीफ साइज एंड लीफ शेप एंड वेनेशन। जो वेनेशंस है वो हमें देखना है, दीज आर द सेम्स बट प्लांट्स आर डिफरेंट। ये प्लांट डिफरेंट है, फिर भी देयर इज अ एंसेस्टर आर मस्ट बी अ सेम, और उससे ही ये डेवलप्ड हुए हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल, एनाटॉमी किसके कहते हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर स्केलेटल, स्केलेटल दैट इज अ बोनी स्ट्रक्चर आपका जो होता है, तो उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। क्या हो, तो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट्स इन ऑर्गन of each of those animals show similarities. There is the structure of bones and bony joints, bone और bony joints with the organ, organ के साथ हो रहे, तो these are the animal shows the similarities. Second, human hand, pangolin of the bat show the difference in features because of their uses. ह्यूमन हैंड का यूज डिफरेंट है और बैट के पंख उनका यूज डिफरेंट है, बट बोनिकल स्ट्रक्चर दैट इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इंडिकेट दैट those animal may have common ancestor. ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज भी आपको बताएगी, that is the animal have a common ancestor, ये हमें उससे पता चलेगा। चलो, here is a your बुक में जो भी एग्जाम्पल्स है वो हम लोग ने यहाँ पे कॉपी किए हैं। नेक्स्ट, here is a वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाएगा, और एक्सप्लेन द वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल ऑर्गन को हमें एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे वेस्टिजल ऑर्गन, जो ऑर्गन अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे बट पहले करते थे, तो अभी के लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना। जैसे मैं एक पेन यूज कर रहा था बट अभी उसकी मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा एक पेन है जो बहुत इजीली मैं उसको राइटिंग कर सकता हूं, तो मैं वो मेरे लिए क्या होगा, वेस्ट हो गया। लाइक दैट इवोल्यूशन के वजह से हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो वेस्टिजल है। ओके, चलो, तो इसको वेस्टिजल ऑर्गन क्या होते हैं देखते हैं। डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड, डिजेनरेट होगा मीन्स नॉन यूजेबल, और अंडर डेवलप मीन डेवलप्ड हुआ ही नहीं है। अनलेस ऑर्गन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द वेस्टिजल ऑर्गन, इसे क्या कहेंगे, वेस्टिजल ऑर्गन कहेंगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट of new tissue or organ for living changing environment is not possible. Instead, existing organ undergo gradual change. जैसे सडन डेवलपमेंट हुआ तो न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन ये तुरंत तो चेंज नहीं होंगे बराबर, पर वो डैमेज तो होंगे और ये कम काम करना चालू हो जाएंगे। मोस्टली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज यूजफुल अंडर अ सर्टेन सिचुएशन। एक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो एक
स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बनाया हुआ आता है. बट however, some structure under different situation may become useless or even harmful. ये कुछ सिचुएशन में ये बॉडी स्ट्रक्चर हमारे लिए हार्मफुल भी होगा या नॉन यूजेबल हो सकता है. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, such structure being to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से वो डीजेनरेट होना स्टार्ट करेंगे. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ये तुरंत नहीं होने वाला, इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते, हजारों साल लगने वाले फॉर द structure to disappear. Such organ seen in different phase of disappearance in the different animal. ये धीरे धीरे अलग अलग फेज में ये डिसअपियर होने वाले, ऑटोमेटिक नहीं होने वाले, ये धीरे 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 डिसअपियर होने वाले. एंड सच ऑर्गन और नॉन फंक्शनल इज अ सर्टन ऑर्गेनिज्म. इसके लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. फर्स्ट इज अ अपेंडिक्स. अपेंडिक्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को जहां पे जॉइंट होता है वहीं पे एक छोटा ट्यूबल सिस्टम क्रिएट हुआ है. दैट इज एक पूछ लाइक, पूछ जो होती है ना उस तरह से एक छोटी चीज क्रिएट हुए. दैट इज अपेंडिक्स. अब अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल एनिमल इन रेम्यूनेंट्स. रेम्यूनेंट्स कौन होते हैं? गाय भैंस जो होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बराबर. यानी ह्यूमन बीइंग पहले तो क्या खाता था, प्लांट ही लेते थे ना, फिर हम लोग ने चेंज किया और हम लोग मीट खाने लगे, तो हम लोग क्या हो गए, ओमनीवोरस हो रहे. पहले हर्बीवोरस थे, अब ओमनीवोरस है. तो ये चेंजेस के वजह से यहाँ पे एक ये अपेंडिक्स क्रिएट हुआ है, विच इज नॉट हार्मफुल फॉर अस बट इट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्गन है. ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है. ओके. नेक्स्ट इज अ ईयर पिना. ईयर पिना हमारे ईयर्स के दोनों साइड के पिनास. अ मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन बट यूजफुल फॉर मंकी फॉर मूवमेंट. मंकी जो भी होते हैं, मंकी है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो अपने ईयर पिना को ऊपर नीचे कर सकते, मोड़ सकते, डायरेक्शन दे सकते. तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल है, बट ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो यूजफुल नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज देयर इज अ विजडम टीथ. विजडम टीथ ये अप्रोक्सीमेट 20 ईयर के बाद, एज उम्र के 20 ईयर के बाद आते हैं. एंड दे आर द लास्ट इन आवर माउथ कैविटी. ओरल कैविटी में सबसे पीछे के साइड में होते हैं, जो खाने के लिए या तोड़ने के लिए कुछ भी यूज नहीं होते. दे आर द वेस्टिज. वो कुछ भी काम नहीं करेंगे और ये हमारे लिए भी हार्मफुल क्रिएट होते हैं बिकॉज विजडम टीथ ये बिकॉज ऑफ ज़्यादा काम होने के न वजह से और यहाँ पे डर्ट यहाँ पे जमा हो जाती है बिकॉज दे आर इन अ लास्ट ओरल कैविटी में सबसे पीछे के साइड में होते हैं. दैट इज अ विजडम टीथ. तो ये चीज हमारे लिए हार्मफुल है. नेक्स्ट इज अ टेल बोन. टेल बोन मीन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ एक एक्स्ट्रा बोन है जो पूंछ की तरह, उसको टेल बोन कहते हैं. तो ये भी
धीरे धीरे गायब हो रहा है। जो अगर हम लोग मंकी से डेवलप होके आए हैं, मीन्स मंकी के पास क्या है, मंकीज के पास क्या है, पूंछ है, बंदर के पास पूंछ होती है, तो वहां पे उनको टेल बोन जरूरत है, हमें टेल बोन की जरूरत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट इज अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं? अब यहां से हम लोग इवोल्यूशन कैसे हुआ उसकी जानकारी ले सकते हैं। ओके, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ये टू पार्ट में डिवाइड है, दैट इज अ फॉसिल्स एंड कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग। ओके, सिंपल थिंग है, ये पॉइंट आपको कार्बन डेटिंग को पूरा इलास्ट्रेट करके बता देंगे। चलो, फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द फॉसिल्स। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट buried ड्यू टू द डिजास्टर ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, उसके वजह से वो नीचे के अर्थ के नीचे दब गए। ओके, ruminants and the impressions of such organism remain preserved underground and that's called the fossils। उसे हम लोग क्या कहेंगे? fossils कहेंगे। Such study of fossil is an important aspect of study of evolution। ये fossils and structures हमें क्या बताते हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताते हैं, और ये भी हमें हमारे इवोल्यूशंस जो चेंजेस हुए उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज अ कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या है? तो कार्बन डेटिंग हियर इट इज अ टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंड द एज ऑफ फॉसिल्स। जो फॉसिल्स हमें मिला है उसकी एज फाउंड करने की एक टेक्निक है जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन कंपोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ। कार्बन कंपोजिशन, हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ओके, जो भी प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कब स्टॉप होगा? जब वो डेड हो जाते हैं। ओनली डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर कंटिन्यूसली। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? C14, दैट इज उसको डीके करना, तोड़ देना, तो उसे कार्बोनेशन प्रोसेस होती है। तो ये कंटिन्यू चालू हो जाती है जब वो प्लांट और एनिमल डेड हो गए। कंजम्पशन, कार्बन कंजम्पशन रुक गया, से स्टार्ट हो गई डीके मेथड। ओके, इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इंस्टेड ऑफ remaining constant, the ratio between C14 C12 change continuously as C12 is a non-radioactive। C14 क्या है? नॉन रेडियोएक्टिव, बट यहां से C14 का और C12 के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, जो भी रेशियो होगा, वो उस प्रोडक्ट की हमें एज बताएगा। क्या बताएगा? हमें उसकी एज बताएगा। चलो, टाइम टू पास सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and the ratio of C14 and C12 present in the body। क्या मिला हमें? C14 का रेडियो एक्टिव मेजर करेंगे एंड द रेशियो ऑफ C14 टू
C12 का रेशो फाउंड करेंगे और हमें क्या पता चलेगा, दिस मेथड इज कॉल्ड द कार्बन डेटिंग मेथड. This process called the carbon dating method. It's a 2-mark question. 4 point you will get total 2 marks. Okay, easy. चलो, I promise you हर एक लेसन, इससे आगे के हर एक वीडियो आपको इसी तरह से एज पर यूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनाए जाएंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये लेसन बनाए जाएंगे और उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स मिल सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. अब व्हाट इज द यूजेस ऑफ कार्बन डेटिंग मेथड. कार्बन डेटिंग मेथड के यूजेस क्या है? इट इज यूज इन द paleontology and anthropology for determine the age of fossils and manuscripts. fossils and manuscripts की एज फाउंड करने के लिए हम लोग उसका यूज करेंगे. तो ये दिस इज अ यूज आल्सो. क्लियर? चलो, next is a connecting link. अब we are going to study about the connecting links between the species. species में किस तरह से connecting link है. some plant and animal show some morphological characters by which they can related to two different groups. hence this called the connecting लिंक. अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल दिए. एज इट इज अ पेरिप्लेटस, दैट इज इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड एंथ्रोपोडा. इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड एंथ्रोपोडा. दिस इज फॉर अ फिल इन द ब्लैंक्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है. Next here is a duckbill platypus. अब duckbill platypus क्या हो रहा है? duckbill platypus lay egg like reptiles but show the relationship with the mammals too due to presence of mammary glands and hair. उसके पास क्या है? mammary glands and hairs है जो मैमल्स में अवेलेबल है. बट एज पर रेप्टाइल्स दे आर लेइंग एग. तो एग भी दे रहा है और यहाँ पे मेमरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स है. तो दोनों के यहाँ पे फ्यूजन है इनटू द डकबिल प्लैटिपस में. क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द डकबिल platypus. Show the connecting link. Explain the connecting link between the duckbill platypus. 1 mark question यहाँ पे पूछा जा सकता है. Next, lungfish. Lungfish perform respiration with the lungs and irrespective to being the fish. इसके पास lungs है, respiration lung से कर रही है, but दिस इज अ फिश. तो ये भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है. These examples indicate that mammals are evolved from the reptiles and amphibians from fishes. Means हम लोग जो डेवलप्ड हुए, that is the first thing is a fish. फिश से आगे reptile एंड रेप्टाइल से डेवलप्ड हो गए मैमल्स में. तो ये स्टेप्स हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती है. ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज अ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ 4 mark क्वेश्चन.
4 मार्क के लिए इसे पूछा जाता है क्या? Darwin theory of natural selection. He published the theory of natural selection which purge the survival is fittest. उन्होंने क्या बताया? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। सिंपल थिंग है, आज भी यही है, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं। चलो नेक्स्ट, हिज बुक नेम इज अ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इनके बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। थर्ड पॉइंट, इन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्पिटिशन only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. वही लोग जीतेंगे जो विन होने के लिए खुद में कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आएंगे, तभी जीत पाओगे। मीन्स ओल्ड स्टोरीज चल रही है, टेक्स्ट बुक लिया, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। एन वक्त पे एग्जाम पे गए, सब भूल गए। ओके, तो मार्किंग करो, पॉइंट्स निकालो, कीवर्ड्स लो, और सी माय वीडियोस एंड माय ब्लॉग्स देखो, और इजीली कर पाओगे। हियर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत टेंशन की लाइफ है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म वही सस्टेन करेगा जो इसेंशियल मॉडिफिकेशन, अपने बॉडी में इसेंशियल मॉडिफिकेशंस कर पाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। नेचुरल सिलेक्शन ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव एंड रेस्ट आर पेरिश। वैनिश हो जाएंगे, कोई उसको याद नहीं रखेगा, बराबर ना। जो फिट करेगा लोग उसकी पूजा करेंगे, और जो हार गया वो उसका नाम कोई भी पूछता नहीं है। चलो नेक्स्ट, sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to a new species and their own specific character. जो फिट होंगे वही रिप्रोडक्शन करेंगे, और जो रिप्रोडक्शन करेंगे वही अपने जीन्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मीन्स जो अनफिट है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बराबर, और वो अपने जीन्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, मीन्स दे आर पेरिश। देयर इज अ लाइन इज अ फिट टू लाइव एंड रेस्ट इज अ पेरिश। क्लियर? इट्स अ थियरी। अब इस डार्विन की थियरी पे कुछ ऑब्जेक्शंस थे। ओके, ये भी आपके क्वेश्चंस में आना चाहिए। ऑब्जेक्शंस टू द डार्विन्स थियरी, ये आपको टोटल 4 मार्क पूरा मिलने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शंस क्या क्या है। फर्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं था इवोल्यूशन के लिए। सेकेंड, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। जो हम लोग ने पहले देखा है उसके बारे में सर डार्विन ने इसके बारे में यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नेक्स्ट, there is a no explanation about the slow change and abrupt change. कुछ चेंजेस स्टॉप हो गई है या कुछ चेंजेस
स्लो चल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था. Here is a Darwin's theory and here is the 3 points for the objections of Darwin's theory. Clear? Chalo. Next is a Lamarckism. This is also very important. That is Lamarckism. Here, that is Lamarck opposed that morphological changes occurs in living organism are responsible for evolution. तो उन्होंने यहाँ पे morphological changes responsible है ये मान लिया. The reason behind those morphological changes, there is activities or laziness of the organism. But यहाँ पे उन्होंने क्या माना है? एक्टिविटी एंड लेजीनेस. एक्टिविटी मीन्स जो उस चीजों को या मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है तो वो डेवलप्ड हो गई, और जो लोग जो स्पीशीज उस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे, दे आर पेरिश, खत्म हो रहे. चलो अब फर्स्ट, a neck of giraffe has become too long due to burrowing on the leaves of tall plant. By extending their neck for a several generation, जिराफ की नेक बढ़ती जा रही है. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया. सेकेंड एग्जाम्पल दिया, द शोल्डर ऑफ द आयरन स्मिथ. आयरन स्मिथ जो लोहार होता है, उसको लोहे को काटना है या बनाना है तो ताकत है उसके आयरन हैंड्स में, तो शोल्डर्स उसके स्ट्रांग होंगे. नेक्स्ट, विंग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक द ईमू एंड ऑस्ट्रिच, दे आर नॉट यूजिंग ईमू और ऑस्ट्रिच, दे आर नॉट यूजिंग देयर विंग्स, सो ये वीक हो गए, और वीक ड्यू टू नो यूज, तो ये वीक हो गए, तो ये अनयूज हो गए. Next, leg of the bird like a swan and duck have been useful for swim due to the living in water. वाटर में रहते तो उनके जो लेग है वो क्या हो रहा है? तैरने के लिए यूज हो रहे. देन द वॉकिंग से ज्यादा वो तैरने के लिए यूज हो रहे. क्यों? बिकॉज दे are living in a water. Chalo. Next, all these types of acquire characters and the transfer from one generation to another. ये कैरेक्टर्स कैसे होते? धीरे धीरे एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते जाएंगे. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स और लामार्किनिज्म. और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स और लामार्किनिज्म. इसे हम लोग लामार्किनिज्म कहेंगे. तो व्हाट इज द लामार्किनिज्म? एंड दिस इज द, गिव द एग्जांपल एंड राइट द फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट दे दो. और लामार्किनिज्म इफ देर इज अ 1 मार्क, 1 मार्क के लिए पूछा गया है तो ये 2 पॉइंट दे दो, आपको 1 मार्क टोटल मिल जाएगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजेनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाइडली एक्सेप्ट. अगर आप उस चीज को यूज ही नहीं कर रहे हो तो वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगी, और उसको यूज कर रहे हो तो वो डेवलप्ड होती जाएगी. दे आर डेवलप्ड होती जाएगी. ओके, सिंपल थिंग है. बाय ट्रांसफरिंग दोज कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड. अगर उसको यूज कर रहे हो तो वो जनरेशन टू जनरेशन डेवलप्ड होती जाएगी, और यूज नहीं कर रहे हो तो जनरेशन टू जनरेशन ये डिग्रेड होती जाएगी एंड दे आर रिजेक्टेड. वो रिजेक्ट हो जाएगा पूरा. क्लियर? नेक्स्ट,
स्पेसिफिकेशंस। अब स्पेसिफिकेशंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल through the effect of evolution called the speciation। क्या हुआ? Formation of new species of plant and animal through the effect of evolution is called as a specification। Each species grow in specific geographical condition, that is their food, habitat, reproductive ability and periods is different। हर एक का ये पीरियड डिफरेंट होता है। जेनेटिक वेरिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन। जेनेटिक वेरिएशंस भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली geographical and reproductive isolation also leads to the specification। geographical and reproductive isolations ये भी leads करेंगे specification। here is a 4 points। what is the specifications? here as now we are going for our last topic, that is a human evolution। ये human evolution कैसे हुआ? this is the step by step। human evolution के बारे में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन और उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। चलो, human evolution। last dinosaur have disappeared approximately 7 crore year and then monkey like animal are said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to the modern lemur। lemur जैसे दिखने वाले ये एनिमल्स थे। कब हुआ ये? आफ्टर द जब डायनासोर्स डिसअपियर हो गए। नेक्स्ट, टेल ऑफ दीज मंकीज लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू हैव अ डिसअपियर अबाउट 4 करोड़। अफ्रीकन में ये 4 करोड़ ईयर एगो ये स्पीशीज की टेल डिसअपियर होने लगी। नेक्स्ट, evolution to come 2 crore year old species of ape seem to occur different way, that is they had to use their hand more for eating food and other work। दो अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ ईयर पहले ये स्पीशीज ने क्या कर दिया? इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, जो अपने हैंड्स को डिफरेंट तरीके से यूज करने लगे। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल रिकॉर्ड एज अ रैम्पिथिसियस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। ये कहाँ पे मिला हमें? ये स्पीशीज ईस्ट अफ्रीका में रिकॉर्ड है कि ये यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट, एप ग्रू इन अ साइज, बिकम मोर इंटेलिजेंस एंड इवॉल्व 40 लाख ईयर एगो। 40 साल पहले ये ग्रो होना और इंटेलिजेंस होना चालू हो गए। स्किल ह्यूमन अपीयर इन अ नंबर ऑफ जीनस होमोजीनियस जीनस होमो, ये हो गया। अबाउट 15 लाख ईयर एगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर इवॉल्व एंड एग्जिस्ट इन चाइना, इंडोनेशियन, एशियन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे 15 लाख ईयर पहले यहाँ पे
इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया ये पार्ट में ये कुछ इरेक्ट पोर्शन में चलने लगे, मीन्स दो पैरों पे इजीली चलने लगे। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यू in the direction of developing the brain and period about 1 lakh year। ये 1 lakh year तक इनका ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहा। ब्रेन ऑफ 50,000 year old man had been sufficiently evolved in the extent that it could be considered as a member of class wise man, that is a homo sapien। 50,000 ईयर पहले जो मैन थे उनका ही उनको हम लोग ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं, जिसको होमो सेपियन नाम दिया गया है। दैट इज अ जीन्स होमो सेपियन स्पीशीज। ओके, here is a now Neanderthal man can be considered as an example of a wise man। Neanderthal man is a, ये पूछा जाता है डैश इज a considered as a wise man, तो fill in the blanks के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, the Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago and afterward the evolution had been faster than the earlier। Cro-Magnon man के बाद ये इवोल्यूशन थोड़ा फास्ट हो गया। पहले जो करोड़ों साल लग रहे थे अभी उतना नहीं लग रहा है, अभी वो इवोल्यूशन फास्ट हो रहा है। सेल्स की जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होने लगी। Here is we finish our chapter। जो चैप्टर आपको 2 या 3 से 4 घंटे लगेंगे वो मैंने आपको विद इन 1 आवर में आपको पूरी तरह से समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियोस मेरा इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में होगा। जो क्वेश्चन आंसर्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते एज वेल एज जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस वीडियो ऑल्सो। हम लोग जो भी वीडियोस बना रहे और जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहे, जो भी पॉइंट आपको डिस्कस किए जा रहे, दे आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड important keywords। So we are stop here, we will meet again for a next video। Thank you for watching me and don't forget, please and please don't forget to subscribe, like and bell icon। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि मेरे न्यू वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे। लाइक से मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे या आपको अच्छा लगा नहीं लगा, और बेल आइकन इज अ नोटिफिकेशन होता है जो आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो आ चुका है। तो ये नोटिफिकेशन के लिए, तो ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, थैंक यू।